السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ دل تجھ پہ ہار گیا، عبداللہ بٹ کی قلم سے لکھا گیا، قسط نمبر 5۔ اس بارے میں فکر مت کرو تم، میں ان سے بات کر لوں گا اور انہیں اپنے ساتھ ہی لاؤں گا تم سے ملوانے کے لیے۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہوا تو میں اس معاملے کو خود سنبھال لوں گا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے وشدان صاحب، وہ آپ کی بات سمجھ گئی۔ اب بہتر ہے کہ ان تمام معاملات سے نکل کر ہم تھوڑا سا کمپنی کے معاملات کی طرف بھی آئیں نا۔ وجدان نے جب دلنشین سے کہا تو دلنشین کے بولنے سے پہلے ہی ساحل بولا، جس پر ان دونوں کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی اور وجدان سر ہاں میں ہلا گیا۔ اچھا دلنشین، تم باہر جاؤ، تمہیں نازنین سارا کام سمجھا دے گی۔ جب تک تم یہاں پر ہو تمہیں کام بھی کرنا پڑے گا، زیادہ نہیں ہے، بس میری میٹنگز وغیرہ کے بارے میں خیال رکھنا ہوگا اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں۔ ساحل کی بات سن کر اس نے دلنشین کی جانب دیکھا، جس پر وہ سر ہلاتی ہوئی وہاں سے اٹھتے باہر کی جانب قدم بڑھائے۔ ویسے میری بات ماننا، تو اس لڑکی سے سچ میں شادی کر لے یار، بہت خوبصورت ہے، تیرے ساتھ بہت اچھی لگے گی۔ دلنشین کو جاتا ہوا دیکھ کر اس نے مسکرا کر وجدان سے کہا تو وہ گھور کر اس کی جانب دیکھے گیا۔ ہم یہاں بزنس کی بات کرنے کے بیٹھے ہیں، میری زندگی کے اہم معاملات میں خود دیکھ لوں گا، تو فکر مت کر۔ وہ لہجے میں تھوڑی سی سختی لیے ہوئے اس کی طرف دیکھ کر بولا تو اس نے سر نفی میں ہلاتے چہرے پر گہری مسکراہٹ کو عیاں کیا۔ خالہ سے بات ہوئی تھی میری، وہ کہہ رہی تھی کہ کل رات تک پہنچ جائیں گی، تو کل آفس میں ہم تمام معاملات ڈسکس کر لیں گے۔ وجدان نے فون کی دوسری جانب موجود دلنشین سے کہا، جو اس وقت تھک چکی تھی۔ ٹھیک ہے، کل سکون سے بات کر لیں گے، لیکن اس وقت تو میں مکمل طور پر تھک چکی ہوں اور کوئی بھی بات سمجھ نہیں آ رہی صحیح طریقے سے۔ انشاءاللہ کل بات ہوتی ہے، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے، تم ریسٹ کرو، اللہ حافظ۔ وجدان کو دلنشین کی آواز سن کر ہی معلوم ہو رہا تھا کہ وہ تھک چکی ہے، تو اس نے مسکرا کر کہا اور فون بند کر دیا۔ وہ اس وقت اپنے لیے کافی تیار کر رہا تھا اور ابھی اس نے فون رکھا ہی تھا کہ اسی وقت دروازے پر بیل بجی اور اس کے چہرے پر حیرانگی کے تاثرات پھیلے کہ رات کے اس پہر سے ملنے کے لیے کون آ سکتا ہے۔ اسی حیرانگی کو چہرے پر لیے وہ دروازے تک پہنچا اور جیسے ہی دروازہ کھولا تو سامنے کھڑی ہوئی شخصیت کو دیکھتے اس کے چہرے پر مزید حیرانگی پھیل گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ اس کی خالہ شائستہ ہی کھڑی ہوئی تھی۔ خالہ آپ؟ انہیں دیکھتے ہوئے وہ شدید حیرانگی میں مبتلا ہوا اور ان سے سوال کیا، جب ہی شائستہ نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا اور سر ہاں میں ہلایا۔ ہاں میں؟ کیا ہوا، تم مجھے دیکھ کر حیران ہو رہے ہو؟ شائستہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا اور گھر میں داخل ہوئیں۔ جب ہی وجدان حیران کن تاثرات چہرے پر لیے ان کی جانب دیکھتے سر ہاں میں ہلایا۔ اس لیے تو میں آئی ہوں۔ اس اشارے کو دیکھتے انہوں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، وہی آپ تو پرسوں آنے والی تھی نا، تو پھر اچانک آج کیسے؟ اس نے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ لیے ہوئے ان کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ سوچا کیوں نہ تمہیں سرپرائز دوں، ویسے بھی میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں اس لڑکی سے ملوں جسے تم پسند کرتے ہو۔ میں چاہتی ہوں کہ میں بہت جلد اس کے گھر رشتہ لے کر جاؤں اور تمہیں بیاہ دوں۔ اب میں مزید اس میں دیر نہیں کرنا چاہتی، ویسے بھی تمہارے والد اور والدہ بھی یہی چاہتے ہیں۔ خیر اندر آؤ، بات کرتے ہیں اس بارے میں بھی، مجھے بتاؤ۔ شائستہ نے مسکراتے ہوئے اس کی جانب دیکھ کر کہا، وہ اندر کی طرف قدم بڑھائے، جبکہ وجدان خاموشی سے دروازہ بند کرتے ان کی جانب قدم بڑھائے۔ ہاں تو پھر بتاؤ، کیا نام ہے اس لڑکی کا؟ وہ دونوں اس وقت لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے، جب ہی شائستہ نے مسکراتے اس سے سوال کیا۔ دلنشین نام ہے اس کا۔ اب جب سارا کچھ ان کے سامنے آنا تھا تو پھر چھپانے میں کیا ہی رکھا تھا، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو شائستہ کے چہرے پر گہری مسکراہٹ پھیلی۔ ماشاءاللہ، نام تو بہت پیارا ہے اس لڑکی کا، دلنشین۔ ان کی یہ بات سنتے وجدان کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیلی اور اس نے سر اسمات میں ہلا۔ تم کیسے ملے اس سے، بتاؤ تو صحیح، میں جاننا چاہتی ہوں، یقین کرو مجھے بہت تجسس ہو رہا ہے۔ شائستہ نے آنکھ مینگ کرتے ہوئے ان کی جانب دیکھ کر پوچھا۔ اصل میں وہ میری پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کر رہی تھی، اسی طرح اچھی لگنے لگی اور پتہ ہی نہیں چلا کب پسند آ گئی۔ وجدان نے کچھ لمحات سوچنے کے بعد ان سے یہ کہا تو شائستہ نے سر ہاں میں ہلاتے اس کی جانب دیکھا۔ یہ باتیں تم نے بالکل ٹھیک کی ہیں میری جان، محبت جب ہوتی ہے نا تو اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ بس ہو جاتی ہے۔ تمہاری اس کیفیت کو تو میں سمجھ سکتی ہوں۔ خیر مجھے یہ بتاؤ کہ اس گھر کہاں ہے، میں ملنا چاہتی ہوں۔ وجدان مسکراتے ہوئے ان کی بات سن رہا تھا، جب بھی شائستہ نے ان سے دلنشین کا ایڈریس مانگا تو ایک لمحے کے لیے شوق نگاہوں سے ان کی جانب دیکھنے لگا۔ ایڈریس کا کیا کریں گے آپ؟ میں اب بہت کسی دن ان سے ملوانے لے جاؤں گا۔ وجدان نے شائستہ سے سوال کرتے انہیں کہا کہ وہ خود ہی نے دلنشین سے ملوانے لے جائے گا، تو وہ نظریں چھوٹی کرتے گھور کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیوں، کیا کوئی مسئلہ ہے میرے ملنے میں؟ اگر میں ان سے ملوں گی تو اس میں کیا ہو جائے گا، یا تم چاہتے ہی نہیں ہو کہ میں ملوں؟ کہیں تم مجھ سے جھوٹ تو نہیں بول رہے؟ کچھ شائستہ نے اس سے اتنے سارے سوال کیے تھے، وہ پریشانی کے عالم میں صرف اور صرف سر نفی میں ہلا گیا۔
अरे नहीं खाला, ऐसी कोई बात नहीं है, आप तो सिपाही बन जाती हैं बात बात पर। फिक्र मत करें, मैं इसका ड्रेस आपको दे दूँगा। चंद लम्हात बाद ही उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाते हुए इनसे कहा तो वो सर हाँ में हिलाते उसकी जानिब देख रही थी। ठीक है, तो मैं ड्रेस अभी के अभी भेजो। ये कहते शाइस्ता ने अपनी नज़रों के सामने उससे वो ड्रेस मंगवाया, क्योंकि वो खुद इस लड़की से मिलना चाहती थी जिस लड़की को इनके भांजे ने अपने लिए पसंद किया था। जिस दिन आप मुझे कहेंगी उसी दिन मैं आपको इससे मिलवाने दे जाऊँगा। कल तो नहीं जाएंगे, अभी तो आप आराम करना पसंद करेंगी। हम वरसान बस इनसे किसी तरीके से ये जानना चाह रहा था कि वो दिलनशीन से मिलने कब जाएंगी, ताकि वो इसके हिसाब से उससे बात कर सके। हाँ हाँ बेटा, अभी कहाँ जाऊँगी, अभी तो बहुत थक गई हूँ, कमर में बहुत दर्द कर रही है सफ़र कर करके, सोच रही हूँ कि जाके सो जाऊँ, शाइस्ता ने कहा और वहाँ से उठी। ठीक है खाला, आप आराम करें, आपका कमरा बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप छोड़ के गई थी। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा, कहीं तो मैं आपके लिए चाय या कॉफ़ी बना दूँ। वजदान ने भी अपनी जगह से खड़े होते हुए इनसे सवाल किया तो वो नफ़ी में सर हिला गए। अरे नहीं नहीं, इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा कोई दिल नहीं है अभी, ना ही कुछ खाने का और ना ही पीने का, बस आराम करना चाहती हूँ। शाइस्ता ये कहते हुए अपने कमरे की तरफ बढ़ गई और जब उन्होंने वजदान की जानिब अपनी पुश्त की थी तो इनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो किसी अच्छी चीज़ का साइन नहीं थी। जब वो मुकम्मल तौर पर वजदान की नज़रों से ओझल हो गई तो उसने फ़ौरन अपनी जेब से मोबाइल निकालते दिलनशीन का फ़ोन करना शुरू किया, मगर दिलनशीन सो चुकी थी, इसी वजह से उसका फ़ोन ना उठाया। या अल्लाह, क्या करूं, अब मैं ये लड़की तो फ़ोन ही नहीं उठा रही, सो रही होगी। अब क्या कह रहा है, खाला भी आ गई हैं, वो भी इतनी अचानक, क्या किया जा सकता है अब। उम्मीद है कल तो खाला आराम करेंगी, कल इसके बारे में बात कर लूँगा मैं उससे। इरम ऑफिस जा चुकी थी और वो इस वक्त घर पर अकेली थी। वो भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रही थी जब भी इसको अपने घर के दरवाजे पर मौजूद बेल की आवाज़ सुनाई दी तो दिलनशीन अपने कमरे से निकलते बाहर पहुंची और घर का दरवाज़ा खोला। और जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला तो उसने सामने खड़ी हुई औरत को सवालिया निगाहों से देखा, क्योंकि आज से पहले उसने कभी भी उन्हें नहीं देखा था। आप कौन? उस औरत ने काले रंग का चश्मा पहन रखा था। जब भी इसने चश्मा उतारा तो दिलनशीन ने इनसे सवाल किया, जबकि वो उसकी जानिब मुस्कुराकर देख रही थी। क्या तुम मुझे नहीं जानती? उसने दिलनशीन से सवाल किया तो दिलनशीन सरनफी में हिलाया। नहीं, पहली मर्तबा मिल रहा है, मुझे लगता है कि आप गलत घर आ गई हैं। अरे नहीं नहीं, मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। तुम ये बताओ कि ये दिलनशीन का ही घर है ना? उन्होंने अंदर दाखिल होते हुए सवाल किया जब ही दिलनशीन ने सर हाँ में हिला। जी बिल्कुल, ये दिलनशीन का ही घर है और दिलनशीन मैं ही हूँ। बताइए क्या बात करनी है? दिलनशीन की बात सुनते सामने खड़ी हुई औरत ने उसकी तरफ मुतवज्जो होते हुए गौर से देखा तो चेहरे पर मुस्कुराहट फैली। चॉइस तो बहुत अच्छी है मेरे भांजी की, तो मैं बता देती हूँ, मैं तुम्हारे होने वाले शौहर वजदान की खाला हूँ, तो मुझे शाइस्ता खाला बुला सकती हो। शाइस्ता ने अपनी असलियत इस पर जाहिर करते हुए कहा तो एक लम्हे के लिए दिलनशीन के चेहरे पर हैरानगी फैली, क्योंकि वजदान ने तो उसे कहा था कि वो खुद ने इनसे मिलवाने के लिए लाएगा, लेकिन ये तो अकेली आई थी। अकेली आई हैं आप? हाँ हाँ बिल्कुल, आ जाओ अंदर, सोचो तुमसे मिल लूँ। तुम समझ सकती हो ना कि किस कदर तजस्सुस होता है। जी जी बिल्कुल। शाइस्ता की बात सुनते हुए सर हाँ में हिलाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लिए बोली और दरवाज़ा बंद किया। आप आए, यहाँ बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। दिलनशीन ने ड्राइंग रूम में बिठा और ये कहते फ़ौरन किचन की तरफ कदम बढ़ाए और वहाँ पहुँचते उसने वजदान का नंबर डायल किया। और वहीं दूसरी तरफ वजदान जो अभी सो के उठता हुआ नाश्ता बनाने की गर्ज से नीचे उतर रहा था, उसने देखा तो दिलनशीन उसे बार बार फ़ोन कर रही थी। उसे लगा कि शायद इसलिए फ़ोन करिए कि रात को वो फ़ोन कर रहा था तो वो फ़ोन नहीं उठा सकी। उठ गई हो तुम? रात को मैं फ़ोन कर रहा था। फ़ोन के बच्चे ये बताओ तुम मुझे कि तुमने मुझे ये क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी खाला आने वाली है मेरी तरफ? चेहरे पर गुस्से के तासुरात लिए दूसरी जानिब से जब सुना तो वजदान के चेहरे पर भी शदीद हैरानगी फैली। क्या क्या खाला तुम्हारी तरफ है? तो और क्या कह रही हूँ मैं, वो यहाँ पर है, अब क्या करूँ मैं? अगर उन्होंने मुझसे कुछ ऐसा वैसा पूछ लिया तो फिर मैं क्या करूँगी? वजदान ही बोल रहा था कि दिलनशीन ने उसकी बात काटते हुए कहा, अगर मुझे मालूम होता कि खाला इस तरह का कुछ करेंगी तो मैंने तुम्हारा एड्रेस ही ना देता, लेकिन वो भी तो रात को इस बात पर बस देते कि एड्रेस चाहिए और सुबह मेरे उठने से पहले ही वो तुम्हारे घर पहुँच गई। अच्छा, तो मैं एक काम करूँ कि तुम एयरपोर्ट लगा लो, अपने बालों में छुपा लेना, तुमसे वो जो भी सवाल करेंगी वो सुन लूँगा मैं, साथ साथ कॉल ऑन रहने देना। अगर कोई ऐसा सवाल पूछा उन्होंने जिसका जवाब तुम्हें ना आता हो तो मैं बता दूँगा, ठीक है? दिलनशीन की बात सुनते हुए उसने एक मशवरा दिया जिस पर दिलनशीन ने सर हाँ में हिलाते हुए उसकी जानिब देखा। अच्छा ठीक है, ये कहते उसने चाय भी बनाना शुरू कर दिया, चुपके से अपने कमरे में जाकर एयरपोर्ट भी ले आई। दिलनशीन ने चाय बनाई और सारा इंतज़ाम करते वो ड्राइंग रूम में पहुंची जहां शाइस्ता इनका इंतज़ार कर रही थी। शाइस्ता ने जब देखा कि वो उसके लिए काफ़ी चीज़ें ले आई हैं तो उसने मुस्कुराकर दिलनशीन की जानिब देखा।
दिलनशीन, इतना तकल्लुफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस तुम चाय ले आती। अरे नहीं, आप पहली दफ़ा हमारे घर आई हैं, इस तरह अच्छा नहीं लगता। उसने शाइस्ता की बात सुनते हुए सर नफ़ी में हिलाकर उनकी जानिब देखा और मुस्कुराकर कहा तो शाइस्ता के चेहरे पर भी गहरी मुस्कुराहट फैली और वो इनके सामने आ बैठी। और बताओ, क्या करती हो? शाइस्ता ने चाय का कप उठाते एक घूंट लिया और दिलनशीन से सवाल किया। इन्हें कहो कि तुम इस वक्त मेरी पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हो। कानों में लगे एयरपोर्ट से ये आवाज़ आई। इस वक्त वजदान की पर्सनल असिस्टेंट हूँ, मुस्कुराकर उसने जवाब दिया। मुझे बताओ, तुम और वजदान एक दूसरे को कब से जानते हो? इन्हें कहो कि 1 साल हो गया है। शाइस्ता का सवाल सुनते वजदान ने दिलनशीन से कहा। 1 साल हो गया है? दिलनशीन ने आहिस्ते से जवाब दिया। 1 साल पसंदीदगी को हो गया है या फिर मिले हुए? शाइस्ता ने अगले ही लम्हे इससे सवाल किया। 1 साल पहले मैंने नौकरी शुरू की थी। कुछ माह पहले इस बात का एहसास हुआ कि एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसी वजह से शादी का फैसला किया। ये सुनते हुए शाइस्ता के चेहरे पर मुस्कुराहट फैली, जबकि वजदान जो दूसरी जानिब बैठा हुआ था वो भी हल्का सा मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसने इस तरह का कोई जवाब नहीं सोचा था। अच्छा, यानी कि काफ़ी देर हो गई है। हाँ, मैं उसे जानती हूँ, पर्सनल असिस्टेंट भी हूँ इसकी। ये बताओ कि इसका फेवरेट कलर कौन सा है? ये तो मालूम होगा ना तुम्हें। ब्लू। वजदान और दिलनशीन दोनों में से ही किसी को भी इस बात का एहसास नहीं था कि शाइस्ता किस किस्म का सवाल करेंगी, लेकिन वजदान के काल पर होने की वजह से उसने दिलनशीन को इसका जवाब दे दिया। इसका फेवरेट फ्रूट कौन सा है? मैंगो। इसका भी जवाब भी इसी तरह से दे दिया गया। सही। तुम तो बहुत कुछ जानती हो इसके बारे में, यानी कि तुम वाकई से सच्ची मोहब्बत करती हो। शाइस्ता की बात सुनते हुए उसने एक लम्हे की हैरानगी से इनकी जानिब देखा। ऐसे क्या देख रही हो? अगले ही लम्हे दिलनशीन के चेहरे पर संजीदगी फैल गई और वहीं दूसरी जानिब बैठा हुआ वजदान भी उसके सवाल के जवाब के इंतज़ार करने लगा। मोहब्बत कभी भी हो जाती है, और जब भी हो जाती है तो फिर इतनी आसानी से ना ख़त्म होती है और ना ही इतनी आसानी से जिससे हो इसके बगैर रहने देती है, बस शिद्दत से हो जाती है। दिलनशीन ने संजीदगी से ये बात शुरू की और इस बात के आखिर में उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। इसकी बात सुनकर शाइस्ता भी मुस्कुरा दी। अच्छा, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे अम्मी अब्बू कहाँ हैं? यानी कि घर में कौन कौन है तुम्हारे, जिनसे मैं तुम्हारे वजदान के रिश्ते के बारे में बात करूं? दिलनशीन से वो ऐसा सवाल किया गया था जिसने उसके चेहरे पर परेशानी और संजीदगी को नुमाया किया। शाइस्ता को इस सवाल पे भी वजदान तजस्सुस से दिलनशीन के जवाब का इंतज़ार करने लगा। क्या हुआ दिलनशीन, तुम इतना उदास क्यों नज़र आ रही हो? उसके चेहरे पर फैली हुई उदासी और मायूसी को देखते शाइस्ता ने सवाल किया तो वो उनकी जानिब देखते बोलना शुरू हुई। मेरी अम्मी और अब्बू की वफ़ात हो चुकी है। बचपन में ही एक कार एक्सीडेंट में दोनों की जान चली गई। ये बात सुनते हुए दूसरी जानिब बैठा वजदान और यहाँ पर उसके सामने बैठी हुई खाला दोनों ही शदीद परेशानी के आलम में मुब्तला हुए। अल्लाह, ये तो बहुत अफसोस की बात है। माफ़ करना बेटा, मालूम नहीं था, इसलिए पूछ लिया। मेरी वजह से तुम हर्ट होगी। उसके चेहरे पर फैली हुई मायूसी और उदासी को देखते शाइस्ता ने कहा, जिस पर वह आहिस्तगी से सन्नफ़ी में हिला गई। कोई बात नहीं, यही तो मेरी ज़िंदगी की हकीकत है, इसे तो कबूल करना है। हाजी अकल, बस यही दुआ है कि मेरे वालिदैन जहाँ भी हों हमेशा खुश रहें। उसने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट सजाते हुए कहा तो शाइस्ता सर हिलाती हुई आमीन कह गई। तो फिर यहाँ पर क्या अकेली रहती हो तुम? मतलब कि क्या कोई बहन, कोई भाई? अकेली नहीं रहती, मेरी एक दोस्त होती है मेरे साथ, जो बहनों से बढ़कर है मेरे लिए। इरम नाम है। हम दोनों यहाँ पर इकट्ठे रहती हैं और काम करके अपना निज़ाम चलाती हैं। मेरा कोई बहन या भाई नहीं है, क्योंकि जब अम्मी और अब्बू की वफ़ात हुई तो इस वक्त मैं बहुत छोटी थी। ये मेरी हकीकत है, जिसे कबूल करने के बाद ही आप अपने भांजे के लिए मुझे तस्लीम कर सकती हैं। वरदान भी इसकी बातें सुनता थोड़ा सा अपसेट हो गया था और शाइस्ता इसकी बात सुनकर मुस्कुरा के उसकी जानिब देखेगी। जो हकीकत होती है वो तो बेटा हकीकत ही होती है, क्योंकि हकीकत भी कभी तब्दील नहीं की जा सकती। और तुम्हें देखकर मुझे लगता है कि हकीकतन तो मेरे वजदान के लिए बहुत अच्छी लड़की साबित होगी। मेरी जान, हमेशा खुश रहो। बहुत जल्द हम तुम दोनों की शादी करेंगे, ठीक है? तुम अपनी ज़िंदगी के बहुत अच्छे मरहले में शामिल होने जा रही हो, मोहब्बत का मरहला और अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम रिश्ता निभाने जा रही हो। हमेशा खुश रहो। शाइस्ता ने तमाम तर बातों के बाद इसी बात को मुनासिब समझा कि वजदान ने जिस लड़की का इंतखाब अपने लिए किया वो उसके लिए बहुत मुनासिब है। उन्होंने ये सारी बात मुस्कुराते हुए दिलनशीन की जानिब देखकर कहा, जब दिलनशीन के चेहरे पर भी मुस्कुराहट फैली और वहीं दूसरी जानिब मौजूद वजदान भी मुस्कुरा दिया।